hormones in your body are produced, and a puberty वगैरह. So yeah, exactly. I can't control, you know. Hey guys, hi all of you, how are you all? This is Nizam and you're watching ICS in one shot. So this video is rather gonna be very interesting. So I prescribe all of you to watch till the end. There is something very special in this video. So what you need to do is you have to watch the full video, and there is a secret code that will be displayed on the screen. For a split second you will be able to see it. You have to pay full concentration on the screen, okay? And the person who comments me down in the comment section first is gonna get the place of going to my WhatsApp and Instagram story. Remember, you need to answer first, and you have to answer fastest in the comment box, only then, and one winner only for this, okay? So without any delay, let's begin with the video. Hi guys, hope all of you are doing great. Today we'll be talking about 5 important tips for scoring 75% in board exams. Yes guys, so today we will be discussing about 5 important tips to score 95 plus in board exams guys. Guys, I have got many messages, sir, pre-boards अच्छे नहीं हुए. You know, my first pre-board was good, but this pre-board I did not do well, or you know, both the pre-boards I did not do well, or any of the pre-boards पे I was not able to perform well. So guys, today I will help you to strategize, है ना, strategize कि what you should be doing guys. We should be focusing on basics, and I will tell you how you can do that. So stay tuned. We are going to discuss about how you can score 95%, despite of scoring less marks in pre-board. I know many of you would have got less marks in pre-board, which breaks your confidence. Let's talk about it. Pick it up. This is tough, so you are gonna be guys. Pre-boards were tough, so are you. ठीक है, pre-board tough हो तो क्या वो आप बहुत tough हो. Yes. First and the foremost thing is guys, know your syllabus and resources. Resources guys, these days there are plethora of resources. मतलब हर कोई YouTube चैनल पे नया कंटेंट आता है. अगर आप पेड क्लासेस करते हो तो वहाँ पे भी अलग कंटेंट है. ठीक है, तो व्हाट आई वांट ऑल ऑफ यू टू डू इज गाइस, चूज अ पर्टिकुलर कंटेंट एंड फॉलो इट रिलीजियसली. ठीक है, एक चूज कर लो और उसको फॉलो करो. ऐसा नहीं कि आज इससे पढ़ लिया कल उससे पढ़ लिया. डोंट डू दैट गाइस. जस्ट कीप वन रिसोर्स, वन नोट, और मेक नोट्स. बेस्ट विल बी मेक नोट्स. एक ही रिसोर्स रखो गाइस. मेक नोट्स of that and keep revising them again and again. Do not read आज लाइफ प्रोसेस यहाँ से पढ़ लिया, कल लाइफ प्रोसेस दूसरी किसी ऑर्गेनाइजेशन से पढ़ लिया. डोंट डू दैट. एक ही चीज पढ़ो, है ना. एंड गाइस, सिलेबस का पढ़ो. अभी डू नॉट ट्राई टू रीड कंट्रोल एंड वर्जन. आ ही नहीं रहा वो चैप्टर, है ना, तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी के लिए. एटलीस्ट बाद में पढ़ लेना जब मन करे, अभी मत पढ़ना. ठीक है. नो योर रिसोर्सेज, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना बच्चे. वेरी गुड. सेकेंड थिंग, take control of any distractions. Right now again I can see many times people say, sir, how to avoid distractions. ठीक है, I'm not able to take away my eyes off phone मेरे हाथ में आ जाता है बार बार, and 5 minutes का ब्रेक लेता हूँ and it turns out to be 1 hour. 1 hour खत्म हो जाता है. मैं क्या करूँ बेटा? कुछ नहीं करना. आपको क्या करना है, you have to keep your phone in silent. अपने फोन को साइलेंट पे रखो और फेंक दो. Yes guys, keep your phone on silent and decide times when you will use your phone. Guys, you have to develop self-control. You have to develop self-control. If you are not doing it right now, it will be very big problem for you in the future. I guarantee you, आपको करना पड़ेगा, नहीं तो फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है. ठीक है. Yes guys, keep your phone on silent. At least 2 hours के लिए बैठो. जब भी बैठो, keep your phone on silent. Guys, फाइटिंग डिस्ट्रैक्शन एट दिस पॉइंट इज द बिगेस्ट चैलेंज आई बिलीव, क्योंकि अभी ये आपको आदत पड़ चुकी है ना. डू लेट मी नो कि आपको आदत पड़ चुकी है ना. एंड हाउ डू यू कम ओवर इट गाइस? वो कहते हैं ना, स्टडी फॉर 25 मिनट्स, टेक अ 5 minutes ब्रेक, बट आई से 50 minutes पढ़ा करो मिनिमम, एंड देन यू कैन टेक अ 10 minutes ब्रेक. 10 minutes ब्रेक का मतलब ये नहीं कि फोन यूज करा.
2 बार 50 मिनट्स कर लिया, फिर उसके बाद यू कैन यूज इट फॉर से हाफ एन आवर यू कैन यूज योर फोन. बट गाइज प्लीज स्टार्ट यूजिंग टाइमर्स. फोन में और भी चीज होते हैं, फोन में अलार्म्स होते हैं, फोन में टाइमर्स होते हैं, इन सब चीजों का यूज करो. ठीक है. देन गाइज हियर आई एम गोना टेल यू मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स. प्लीज फोकस. रिवीजन इज द की. अब कहोगे बच्चे कहेंगे रिवाइज कैसे करूं? बेटा देखो, सबसे पहली चीज, अपने जो प्री बोर्ड के पेपर है ना गाइज, solve them again and again. Solve them. Pre-board papers of your school, pre-board paper of your friend's school. Solve them, guys. Solve them. And if you are not understanding, if you find some new questions, make a note of them. ठीक है. Second thing, आपके टीचर्स हैं स्कूल में. I keep saying sir, टीचर्स मेरे मार्क्स काट लेती हैं, मेरे को नंबर नहीं देती. बेटा वो नंबर इसलिए नहीं देती क्योंकि आपने सही से नहीं लिखा है. ठीक है. You have not written it properly. So what are you supposed to do, guys? Write or incorporate the tips given by your teachers. जो आपके टीचर्स ने आपको इनपुट्स दिए हैं उनको इनकॉर्पोरेट करो अपने आंसर्स में. अब कहोगे सर आप कहते हो समझ के लिखो, टीचर कहती है रट्टा मार के लिखो. बेटा दोनों का मिक्सचर होना चाहिए, कंबाइन. मतलब टीचर आपको रट्टा मारने की, टीचर कहने की आपके की वर्ड्स होने चाहिए पेपर में. गाइज आई हैव सीन स्टूडेंट्स अंडरमाइनिंग देयर स्कूल टीचर्स. बेटा स्कूल टीचर्स ने आपकी कॉपीज चेक करी है, उनको पता है आप क्या लिख रहे हो. मुझे नहीं पता आपने क्या बोर्ड पेपर में लिखा होगा, आपके स्कूल टीचर्स को लेकिन पता है. एंड दे आर नॉलेजेबल. इफ दे आर सेइंग समथिंग, टेक इनटू देयर अकाउंट. एंड गाइज प्लीज इनकॉर्पोरेटेड. आई क्योंकि देखो टीचर्स बहुत तरह के होते हैं. मेरी तरह के भी टीचर होंगे, आपकी स्कूल की तरह के टीचर्स भी होंगे, वो लोग चेक करते हैं. ठीक है. तो आपको मौका ही नहीं देना है, आपको सारी चीजें इनकॉर्पोरेट करके ऐसा मिक्सचर बना के देना है कि आपको मजा आ जाए जो टीचर चेक करेगा. समझ लो. बीट योर टीचर, बीट टीचर लाइक मी, और बीट एनी अदर टीचर. ओके. तो इफ टीचर गिव्स यू सम फीडबैक, कीप योर ईगो असाइड. डोंट से कि मेरी टीचर को तो आता ही नहीं है, मेरी टीचर को तो नहीं आता कुछ भी बोलती है मैडम, कुछ भी बोलते हैं सर. ऐसा नहीं होना चाहिए. इट्स अ वेरी बैड एटीट्यूड. आई हैव सीन दिस इज बीन देयर इन स्टूडेंट्स अपने टीचर्स को रेस्पेक्ट नहीं करते हैं. गाइज ऐसा मत करो. वो आपके पेपर्स चेक करते हैं. एंड ऑल द टीचर्स गाइज, आई कैन टेल यू, ऑल टीचर कम्युनिटी, दे वुड नेवर वांट एनीथिंग बैड हैपनिंग टू यू. दे वांट ओनली गुड फॉर यू फ्रॉम होल हार्टेडली. मैंने देखा है सारे टीचर बस यही चाहते हैं स्टूडेंट्स का अच्छा हो. ठीक है. तो प्लीज आपके टीचर ने कुछ फीडबैक दिए होंगे, उनको जरूर इनकॉर्पोरेट करो. उन्होंने कहा होगा कि आपके गलत हैं, तो गाइस उनसे हम्बली जाके पूछो, मैम प्लीज आप मुझे बताओ मेरे कम नंबर आए हैं, इसका क्या रीजन है. बिकॉज आई फील मुझे आता है बट मेरे कम नंबर आए हैं. तो हम्बली उनसे रिक्वेस्ट करो, उनसे हेल्प के लिए पूछो. ठीक है. आपके टॉपर, आपके कम नंबर आए हैं, बस किसी ना किसी बच्चे के अच्छे नंबर आए होंगे, तो उसकी आंसर बुकलेट लो, उससे रिक्वेस्ट करो, मैम से बोलो मैम मेरे को उसका आंसर बुकलेट दिला दोगे प्लीज, सो दैट आई कैन सी कि मैंने क्या गलत करा, उसने क्या सही करा. ठीक है. एंड प्लीज कीप असाइड योर ईगो एंड ऑलवेज सी कि आप में एरर हो सकता है, आपने गलती करी हुई है, एक्सेप्ट दिस. ठीक है. आप ऐसे भगवान की जो गलतियां नहीं कर सकते. ठीक है. देयर इज अ पॉसिबिलिटी, 90% आई वुड से देयर इज अ पॉसिबिलिटी आप लोगों ने गलती करी हुई. ठीक है. So we will be those humble kids, and yes guys, please, this is most important. What are we gonna do? Solve pre-board, take feedbacks of teacher, if possible see the toppers copy. है ना बेटा, आपने स्कूल के टॉपर्स कॉपी और देखो कि आपने क्या गलत करा, उसने क्या सही करा. ठीक है. very most important point I would say. Keep a positive mindset guys. I can see पेपर पोस्टपोन हो गया काफी, तो लोगों का ना एंथू थोड़ा जा रहा है, एंथुसियाज्म जा रहा है ना. डोंट लेट दैट हैपन गाइज. ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट. ठीक है. ऑलवेज से मैं कर दूंगा या कर लूंगी, है ना, कर लूंगा या कर लूंगी, है ना, लूंगी नहीं. तो आई विल डेफिनेटली डू इट गाइज. ठीक है. हैव दैट पॉजिटिव माइंडसेट एंड आई एम वेरी श्योर यू आर गोना किल इट, यू आर गोना रॉक इट. आप डेफिनेटली बहुत ही अच्छा करने वाले हो. ठीक है बच्चों. तो ये मन में मत आने दो, आप रिजल्ट के बारे में मत सोचो. बहुत सारे बच्चे रिजल्ट के बारे में सोचे. कितने बच्चे सोचे मेरे को बताओ भी, इस हर मेरे को इतने परसेंट आने चाहिए और मेरे इतने परसेंट आएंगे. मेरे को डर लग रहा है कि 60% तो नहीं आ गए, मेरे को डर लग रहा है 70 तो नहीं आ गए, मुझे लग रहा है कि बस 80 तो ना रह जाए, मम्मी पापा मारेंगे, मम्मी की एक्सपेक्टेशन ज्यादा. बेटा रिजल्ट के बारे में मत सोचो अभी. और जस्ट थिंक ऑफ टुमारो, कि कल क्या करने वाला हूं, इस वीक में मैं क्या करने वाला हूं और करने वाली हूं. बस इतना ही सोचो कि आज मैं क्या करने वाली हूं,
या मैं इस वीक में क्या करने वाला हूँ, ठीक है। जस्ट थिंक अबाउट दैट, रिजल्ट के लिए बारे में मत सोचो। आप सोचो अच्छा आज हम क्या करने वाले हैं, इस वीक क्या करने वाले हैं। बस अमृत सर आज क्या पढ़ाने वाले हैं, अभिषेक सर क्या पढ़ाने वाले हैं, हर्ष सर क्या पढ़ाने वाले हैं, अनुमान क्या पढ़ाने वाले हैं, अंकना क्या पढ़ाने हैं, कौन क्या पढ़ाने वाला है वो देखो। आज क्या पढ़ा रहे हैं, इस वीक क्या पढ़ा रहे हैं, बस आपका काम खत्म। ज्यादा टेंशन नहीं लेने का फ्यूचर का, ठीक है। ठीक है गाइस, वेरी गुड। मेक इट इजी फॉर एग्जामिनर्स टू रीड योर आंसर। गाइस देखो, कुछ बच्चे होते हैं जो ऐसे लिखते हैं, दिस इज माई हैंड राइटिंग। आई वुड से यू राइट लाइक दिस, जगह छोड़ छोड़ के लिखो, ऐसे जगह छोड़ छोड़ के लिखो। समझ में कह रहा हूँ गाइस, लाइक मेक इट ईजियर। अब हैंड राइटिंग तो नहीं सुधर सकती एक दिन में, हैंड राइटिंग एक दिन में तो नहीं सुधर सकती। उसके लिए गाइस मैं क्या कहता हूँ, जैसे कि से आई विल राइट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो गाइस सी आई हैव लेफ्ट स्पेसेस, स्पेस छोड़ के लिखता हूँ मैं पहले कैसे लिखता था, मैं लिखता था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। देखो कितना गंदा लग रहा है। सी कैन यू सी द डिफरेंस, व्हाई? सी हियर आई हैव लिफ्टेड माय पेन, मैंने यहाँ पे छोड़ा, यहाँ पे छोड़ा, यहाँ पे छोड़ा, यहाँ पे छोड़ा, मतलब समझ रहे हो, अलग अलग लिखा। जैसे कि REPRODU है ना, DUCTION। कैन यू सी, देख रहे हो, मैं हर लेटर के बाद अपना पेन उठाता हूँ, समझ पा रहे हो। और थोड़ा जगह छोड़ो, गैप छोड़ो, गैप छोड़ छोड़, एक पैराग्राफ 2 लाइन लिखी, थोड़ा गैप छोड़ो, एक पॉइंट लिखा, एक लाइन छोड़ो, दूसरा पॉइंट लिखा, दूसरा लाइन छोड़ो, ठीक है। गाइस मेक इट इजी। अगर क्वेश्चन नंबर 1 आंसर कर लिया, एक लाइन बना दो, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर करा, लाइन बना दो, क्वेश्चन नंबर 3 आंसर करा, लाइन बना दो। मेक इट इजियर फॉर देम टू अंडरस्टैंड। yes guys, so this will help you to understand, this will give a good impression कि बच्चे को आता है, समझ पा रहे हो गाइस। हैंड राइटिंग सुधर नहीं सकती, बट देयर आर सम टिप्स मतलब एक एक वर्ड के बीच में अच्छा सा गैप छोड़ो, ठीक है, एक एक वर्ड के बीच में अच्छा सा गैप छोड़ो, है ना। और अगर एक पॉइंट लिखते हो उसके बाद एक लाइन छोड़ो, दिस विल हेल्प। मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं बहुत ही गंदा लिखता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा गैप छोड़ छोड़ के लिखता हूँ, ठीक है। तो प्लीज डू दैट, है ना। हैव अ लेजिबल हैंड राइटिंग। लेजिबल मतलब ऐसी जो पढ़ी जा सके, ऐसी नहीं कि जो पढ़ी ही ना जा सके। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा स्लो लिखना पड़ेगा, थोड़ा अपनी स्पीड को कम करो, ठीक है। ये प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस 3 आवर्स पेपर, प्रैक्टिस 3 आवर्स पेपर। गाइस डोंट डू दैट कि 3 आवर पेपर को आप 10 क्वेश्चन कर रहे हो, फिर थोड़ी देर ब्रेक ले लो, फिर कर रहे हो। नहीं, टाइमर लगाओ, 3 घंटे का टाइमर लगा के फिर प्रैक्टिस। गाइस प्लीज स्टार्ट डूइंग दिस 3 आवर्स पेपर, दिस हेल्प यू टू टाइम मैनेज। आपको पता चलेगा पहले 5 मार्क का अटेम्प्ट करना है, पहले 3 मार्क का अटेम्प्ट करना है, पहले 1 मार्क का अटेम्प्ट करना है, क्या करना है, आपको आइडिया लगेगा, ठीक है। तो डू दैट। मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन? मुन्ना भाई बोले MBBS। वाओ यू आर अ डॉक्टर। भाई बोले मेंबर ऑफ बैक बेंचर्स। Hope so all of you have found the link. Please answer fast in the comment section. I'll be eager to see all of your comments. Hit like this video if you like the memes and share it with all of your friends. And do fast. Go down, comment in the comment section fast. Until then, this is Nizam signing off with this interesting video. Thank you for watching. Take care of your health. Goodbye. Peace.